So today is the fifth session of Bhagavad Gita, and let us start with an invocation. Take a deep breath in. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So today we are on the 16th verse of the second chapter, and we will take up three verses, 16th, 17th, and 18th. This 16th verse is the most important verse of the Bhagavad Gita because it sums up the entire Sanatan Dharma or Advait Vedanta. It is the heart of the Bhagavad Gita. Before we look into the shlok and its meaning, let us summarize in plain language what it means. So, what it really says is, Brahman is real and the world is an appearance, and you are that Brahman. That is what it is saying. Krishna is talking about the Advait Vedanta theory of Sanatan Dharma. There is one reality which appears as the world, and you are that reality. Now we will understand what Shankaracharya had said in his commentary on this verse. You know, this is one of those shlokas which even Ganesh Bhagwan took a little time to understand. And at this juncture, we will once again reiterate the story of Vedavyas and Ganesh writing the Gita, the Mahabharata. So, or writing not only the Mahabharata, all the four Vedas. So, you know, Bhagavad Gita is a part of the Mahabharata, which has been written by Vedavyas, but Vedavyas needed someone to write his narrative, and Ganesh took on the responsibility of writing it for him, but he put a condition. He said, you must continuously recite. If you stop, I will stop, and that will be the end. So Vedavyas said, granted, but I also have a condition that you must understand what you write. You cannot write without understanding. So, every time Vyas needed to do his daily chores, he would say a difficult verse. And while Ganesh unraveled the mystery of in his mind, Vedavyas would complete his necessary chores. That is the story. Okay. There are difficult verses in the Gita which are called granthis or knots. And that is where one needs to focus and understand the whole thing. Because, you know, it is actually in the Bhagavad Gita, the difficult verses can be called tautology. They are absolutely obvious and yet difficult to understand because our thinking has gone in a very, very different direction. That is why even the obvious, we take time to understand. So now I will read to you the verse. The translation of the verse is like this. असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शियों द्वारा देखी गई है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। So now,
हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। असत जो चीज है, असत है ही नहीं. It doesn't truly exist. It is like a mirage which does not truly exist. और सत्य का अभाव नहीं है. That which is real, that which is the ultimate truth, that can never be minused from anything. That is ever there, always there, will ever be there. This is what it is saying. And it is adding one line, कि those who know, the Tattvadarshis, the enlightened masters, they understand both aspects of this elemental truth. दोनों को वो पूरी तरह से समझते हैं. Now I want to make you understand it on this practical plane. So how are we going to understand it? So, there is something like borrowed heat. We had earlier also in some context, we have done the example of the hot potato. The hot potato has got borrowed heat. Before it was heated up, it was cold. You could easily hold it in your hand. But this borrowed potato, this hot potato has got its heat from the boiling water. The boiling water has got its heat from the pan in which the water was boiling. The pan has got its heat from the fire which was lit under it. So all these things, the pan, the pot, the boiling water, the potato, all these are having borrowed heat. Whereas fire, as long as it is there, it is hot. It is, heat is the intrinsic quality of fire, whereas everything else which is heated with the lit fire have got borrowed heat. This much is clear. Nobody can deny this. Everybody is with me so far? No problem? Yes, Amnaji. The sign of a borrowed property is that it will come and go. Now let us talk about existence. When existence is a borrowed property, things will come and go. Suppose existence was an incidental property, what will happen? It will come and go, it will be born, then after some time, it will die. All those that are born and die means they have borrowed existence from something. They do not have existence as an intrinsic quality. And this is true of everything in the world. आप कोई चीज बता दीजिए पूरे संसार में जो कि आने और जाने वाले नहीं है. तो हमेशा जो भी चीज पैदा होती है वो एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है. हर एक वस्तु जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वह आने जाने वाली है. पर मान लीजिए कुछ है जो हमेशा है. एग्जिस्टेंस उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है. वह तत्व हमेशा है ही है. वह तत्व क्या है? शंकराचार्य कहते हैं वह तुम हो. वह हमारी नाक के सामने है. पर यूं कहिए नाक के सामने नहीं, एक्चुअली नाक के पीछे है. हर इंद्रिय के पीछे है वो. हर इंद्रिय के पीछे. और वह अमृत तत्व है या वो आत्म तत्व है. अब देखिए, तीन तरह की एंटिटीज हो सकती हैं. एक जिसकी एग्जिस्टेंस इंट्रिंसिक क्वालिटी है, वह है ब्रह्म या सत्य. वो हमेशा शाश्वत है. ये एक पॉसिबिलिटी है.
दूसरी क्या है? जैसे जो कभी नहीं हो सकता। जैसे एक चौरस, स्क्वायर राउंड। कैन यू हैव अ स्क्वायर राउंड? इज इट पॉसिबल? कैन यू हैव अ स्क्वायर राउंड? कैन अ बैरन वुमन गिव बर्थ टू अ सन? एक बांझ औरत के पुत्र हो सकता है? दिस इज द अदर पॉसिबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकती। और एक थर्ड पॉसिबिलिटी है, इन दोनों के बीच की एक स्टेट हो सकती है, जो वैसी चीजें जिनकी बोरोड एग्जिस्टेंस है, जो आती और जाती हैं। दिस इन बिटवीन क्वालिटी कैटेगरी इज कॉल्ड मिथ्या बाय द शास्त्रास। शास्त्रों में एक जो सत्य कहा जाता है और दूसरे का नाम मिथ्या है, मिथ्या नाम से वो जाना जाता है। इसमें फर्क क्या है? मिथ्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉल्स। शंकराचार्य कहते हैं जब ये कैटेगरी की चीजें होती हैं, तब ही उनकी एग्जिस्ट तब भी उनकी एग्जिस्टेंस बोरोड होती है। पर कहीं से तो वो बोरोड होती है। कहां से होती है? सत्य से वो बोरोड होती है। तो इनके भीतर कौन है जो असली है? वह है केवल एकमात्र सत्य। तो यह कैटेगरी असत भी नहीं है, यह शास्त्रों में मिथ्या कही गई है। असत क्या है? इट इज अ स्क्वायर सर्कल। जो कुछ भी मिथ्या है वो माया की उपज है। देखिए, आप लोगों ने गांव वालों को सुना होगा ना कहते हुए कि ये सब तो भगवान की माया है। कहते हैं कि नहीं? अब उनसे आप ब्रह्म ज्ञान का बखान करने मत बैठ जाइएगा। वो लोग ब्रह्म ज्ञान नहीं जानते हैं। वो केवल इतना उनके जहन में अंदर तक बैठा हुआ है कि ये सब माया है। इसके बियॉन्ड वो नहीं जानते हैं। तुम एग्जिस्टेंस कैसे बोरो कर सकते हो? शास्त्रों में कहते हैं एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है। वह घड़ा क्रिएट हो जाता है, पर वह मिट्टी पर डिपेंडेंट है। जब वह होता है तो उसकी शेप होती है, उसका पर्पस होता है, उसकी यूजफुलनेस होती है। बट उसका हर रोल डिपेंडेंट रहता है उस मिट्टी पर जिससे वो बना हुआ है। जैसे अभी देखिए, अपने घर में आजकल तो इतने पॉट्स नहीं दिखते ना, लकड़ी का फर्नीचर दिखता है। तो सब लकड़ी के फर्नीचर्स उस लकड़ी पर डिपेंडेंट रहते हैं। लकड़ी उसका मेटीरियल कॉज होता है, उपादेय कारण। उस वुड में से उस वुड में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, उसमें विकार हो गया है। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हर मॉडिफाइड चीज अपनी एग्जिस्टेंस उपादेय कारण से बोरो करती है। या यूं, या यह क्यों समझना जरूरी है? इससे हम सब उस एक सबस्ट्रैटम से जुड़ जाते हैं जो सबका सबस्ट्रैटम है। तो हम सब से जुड़ जाते हैं। हम सब का एक, मेरे ही अंदर सब है, ऐसा मुझे फील होने लगता है। तो फिर हमको एथिक्स और मोरालिटी अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती। मैं अपने साथ जो करूंगा वो ही मैं दूसरे के साथ करूंगा, क्योंकि सबका अंडरलाइंग सबस्ट्रैटम मैं ही हूं। इतना अपनापन फील होता है। हम सबके दिल में हम सबके दिल में बैठ जाते हैं और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान जाते हैं। Great sensitivity and understanding dawns on the one who understands these two thoughts well. ये दोनों एलिमेंट्स पूरी तरह से समझ में आ जाए तो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होने लगेगी।
इस कैटेगरी के सब ऑब्जेक्ट्स व्हाट आर दे? विकार हैं, सत्य में विकार। मिट्टी में आकार बनाया गया है, कॉज एंड इफेक्ट है। घड़ा टूटा तो क्या हो गया? डस्ट, डस्ट बन गया। मिट्टी, वह मिट्टी में मिल जाता है, उसकी उसकी अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। जो कुछ भी हमारी आंख देखती है वह असल में सत्य है, ब्रह्म है। बहुवचन इन द प्लोरल टेंस, ये बात लिख लीजिए, इट्स अ न्यू थिंग विच आई लर्न। ये इन द प्लोरल टेंस, असत इज कॉल्ड असन। असन, यू अंडरस्टैंड? असत is the singular, asan is the plural. जब कभी इस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे अपने कारण की वजह से हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द कॉज। ये नाम रूप और अपीयरेंस है। ये रस्सी में सांप है, इनकी अपनी सत्ता नहीं है। उस अंडरलाइंग सबस्ट्रेटम में एक विकार या कॉज का इफेक्ट है। आज साइंस कहती है यह सब दृश्य जगत असल में एनर्जी है। मिट्टी से जो बना वह मिट्टी में मिल गया। एनर्जी जो है वो वापस एनर्जी में रिड्यूस हो गई। अब हम वापस उस बोरोड हीट के एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। उससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि सब कुछ बोरोड हीट पर चल रहा है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं, एक तो अंत में तत्व है जो इंट्रिंसिकली गर्म है, इंट्रिंसिकली सेंशियंट है, लाइफ है। तुम्हारे हर अनुभव में देखने, सुनने, सूंघने, खाने, पीने, आने जाने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, पर तुम्हारा उसके प्रति अवेयर होना कांस्टेंट है। देखिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस सब के अंदर एक कांस्टेंट जो फीचर है, अच्छा बुरा सब अनुभव दो को मिलाकर बनते हैं। एक है ये जो कि बोरोड हीट से चलता है, और एक है वो सत्य। अब हम क्या खाली देखते हैं? जो बोरोड सेंशियंस से चल रहे हैं खाली उनको देखते हैं, और जिसकी वजह से वो है उसको हम भूल जाते हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, हमको उस समय दो अवेयरनेस होती है। एक तो वो ऑब्जेक्ट की अवेयरनेस हो रही है, और एक उसके अंदर इजनेस की अवेयरनेस। वो इजनेस इतनी कांस्टेंट है कि हम इजनेस के ऊपर नजर ही नहीं डालते, और हम खाली ऑब्जेक्ट्स को, खाली एक्सपीरियंसेस को देखते चलते हैं। जस्ट सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर अटेंशन. So we are missing the existential element. Every experience, everything that happens to us, we are in touch with two things. One is the experience which is unfolding, the objects and the experience, and the other is the isness. ध्यान दो, विषय बदलते रहते हैं, वे आते जाते रहते हैं। तुम अलग अलग इंद्रियों को इस्तेमाल करके अलग अलग अनुभव लेते रहे हो, पर हर जगह तुम्हें लगता है कि हर जगह तुम्हें लगातार उस इजनेस का एहसास हो रहा है। यह है वेदांत समझने की चाबी। दिस इज द की टू अनलॉकिंग वेदांत फॉर आवरसेल्व्स इन आवर ओन लाइव्स, to keep your attention on the isness rather than the objects or the changing experiences. इसे पकड़ लो तो ब्रह्म ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर यह समझ में नहीं आया तो फिर हमको 18 अध्याय पढ़ने हैं, नहीं तो हमारी गीता यहीं खत्म हो जाती है।
What is the doorway? Our own continually a happening experience of isness. जब भी तुम कुछ एक्सपीरियंस करते हो वो एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर है. देखो, तुमने एक टेबल देखी, टेबल तुम्हारे अंदर नहीं जाती. वो वुडन टेबल तुम्हारी आंख के अंदर जाती है क्या? नहीं. उसका एक इंप्रेशन तुम्हारे अंदर रहता है ना? तुम बाहर एक टेबल देखते हो, तुम्हारे अंदर वह टेबल इन इट सूक्ष्म फॉर्म वो जाती है. और जब वो जाती है तो उसके साथ में उसकी इजनेस भी जाती है. दोनों तुम्हारे अंदर है. अब शंकराचार्य कहते हैं ऑब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं, जो इजनेस का बोध है, द नोइंगनेस ऑफ द इजनेस, वह नहीं बदलता. This sense of isness does not borrow existence from anyone. It lends existence to everything. ये बेशक एब्स्ट्रैक्ट लगे, पर यह हमारा पल पल का बोध है, नोइंगनेस है, जो हम ओवरलुक कर जाते हैं. ये तुम्हारे भीतर इजनेस की फीलिंग, ये तुम्हारे भीतर जो इजनेस की फीलिंग है, वह कॉरस्पॉन्ड करती है उस रियलिटी के साथ जो हमेशा है. वो कॉरस्पॉन्ड करती है, वो उससे एक है. जो भीतर की इजनेस की का बोध है और जो बाहर इजनेस फैली हुई है, वो एक दूसरे से मिली हुई है, कॉरस्पॉन्ड करती है. वह तुम्हारे अंदर वाली इजनेस का बोध भी आता जाता नहीं है, वो कांस्टेंट है. The only reality is fully within you. That only reality, non-dual reality, is fully within you. तुम्हारी इजनेस इंट्रिंसिक है. अंदर वाली जो तुम्हारी इजनेस है वो इंट्रिंसिक है, बोरोड नहीं है, उधार पर ली हुई नहीं है. अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस उधारी होती तो उसका मतलब था इस एग्जिस्टेंस का जन्म होता और कुछ दिनों बाद उसकी मौत होती. वो इम्परमानेंट होती. जो चीज जन्मती और मरती है, उनकी इजनेस उधारी होती है. इनमें से दो चीजें निकलती हैं. किससे सब वस्तुएं इजनेस को उधार लेती हैं? ध्यान देने की जरूरत है. सवाल उठता है, वह क्या है जिसकी एग्जिस्टेंस स्वयं की प्रॉपर्टी है? हमारा हर अनुभव दो सत्य सामने लाता है. वह वस्तु जो हमें इंद्रियों द्वारा दिखाई देती है, और उस वस्तु का है पना, इजनेस. वह इजनेस इतनी कांस्टेंट है कि हम उसको नोटिस ही नहीं करते हैं. I am repeating this because this is the most important thing about the 16th shlok, which applies this existence to ourselves, and we need to understand it. Now, I will read to you the poetic rendition of the 16th verse, and after that, we will consider it completed. है असत का अस्तित्व नहीं, सत का कभी होता अभाव नहीं, तत्वदर्शी मुनियों ने ये दोनों तत्व स्पष्ट जाने. Let me tell you, I had made lots of mistakes even after having gone through the third correction of my Gita. Gurudev has again corrected it. This is the fourth time this verse has been corrected. The enlightened beings are very clear about the impermanent body being separate and the true self being always present. The impermanent body which comes and goes, that is separate from
द एवर प्रेजेंट, शाश्वत, पुरातन, सनातन रियलिटी विच इज आवर कोर। ठीक है, अब हम 17वां वर्स ले लेते हैं। तो पहले मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। Like how the scientists have reached the conclusion that energy can never be destroyed. Have they not reached this conclusion? We can understand it when science tells us, but we will not accept it when it comes from our Rishi Munis. Our Rishi Munis are saying exactly the same thing. अविनाशी तू उसे जान व्याप्त जिससे यह सब है। जिससे यह सब मतलब जगत। इदम, संस्कृत में इसको बोलते हैं इदम, यह सब। नाश रहित वह अव्यय है, कोई न इसे मिटा सकता है। क्या बोल रहा है कि वह एक यह है, यह जगत उससे व्याप्त है, परवेडेड, इट इज कंप्लीटली परवेडेड। और नाश रहित वह अव्यय है, कोई न इसे मिटा सकता है। It is not of this terrestrial plane. It does not fit into the terrestrial plane, yet it is the Aadhar of this terrestrial plane. Okay? So this is how Krishna, by the 17th slok, he has converted it into a living philosophy available right here for us. ये व्याप्त कैसे है? देखिए, दो तरह से व्याप्त हो सकता है। जैसे कि एक कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें आपने लाइट का बल्ब जलाया, तो वो कमरा लाइट से व्याप्त हो गया, इट गॉट परवेडेड बाय द लाइट। बट the room can have a separate existence and the light can have a separate existence. The two of them are separated. They have their separate existence. यहां पर वो बात नहीं है। व्याप्त कैसे है? जैसे लहर में पानी या गहने में सोना। मिथ्या जगत कैसे है? जैसे कोई शांत झील में आसमान, जंगल, पेड़ सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मिथ्या जगत कैसा है? जैसे कि पानी के अंदर पूरा फॉरेस्ट दिखाई देता है, एक शांत झील है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि उसके अंदर पानी है, पर वो पूरा जंगल, पेड़, आसमान, क्लाउड्स सब कुछ उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे ही ये दृश्यमान जगत है, मिराज, रस्सी में सांप। झील में असल में केवल पानी है। जैसे आप रात का सपना देखते हैं, वहां सब मात्र आपका मन ही बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दो तरह से व्याप्त का मतलब समझा दिया है। द फेंट, द subtle differentiation between how a light can pervade the room, but it can have its separate existence, whereas the leher has got no separate existence outside of water. It is in and through only water. 17वां श्लोक कहता है,
वह इजनेस प्योर बीइंग है, वह हमेशा हमारे साथ है। यह वह हिग्स बोसन फील्ड है जो सबको मास देती है। सुना है आप लोगों ने? नारायणी विल नो द हिग्स बोसन फील्ड, that which gives mass. This is the God particle. Higgs boson is the God particle. मटका टूटा तो उसकी अंडरलाइंग मिट्टी फिर भी बनी रहती है। इस एग्जाम्पल से हटकर और तरह भी समझाया जा सकता है, क्योंकि ये मटके का एग्जाम्पल टू हैकनीड हो गया है। एक मटके के टूटने से इजनेस खत्म नहीं होती। मटका नहीं है तो क्या हुआ? मकान है, घड़ी है, कपड़ा है, गिलास है, इन सब में इजनेस का कायम है कि नहीं? तो इजनेस खाली ये नहीं है कि भाई मटका टूटा तो उसके अंदर की मट, इजनेस कंटिन्यूअसली हमारी आंख को टच करती रहती है। इजनेस से स्पर्श कभी नहीं छूटता है हमारा। अब एक और तरह से समझिए, जो सारी सृष्टि है वह उसी इजनेस को दर्शाती है। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनमैनिफेस्ट। इजनेस जो अदरवाइज दिखाई नहीं देती है, उसको आकार देने के लिए यह सृष्टि है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इजनेस। अगर ये सब मिट जाए तो भी एग्जिस्टेंस बनी रहती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देगी। तो क्रिएशन is the manifestation of the Brahman. When creation dissolves, Brahman remains. Understood? Huh? Easy? Conclusion. In this manifest world, there is an isness which is neither born nor does it ever die. उसके ऊपर यह दृश्यमान जगत की सरिता चलती रहती है। संसार बोलते हैं, संसार सरकता हुआ ये सार है, सरकता हुआ है, एवर मूविंग। जगत पैदा होते ही जो पास्ट टेंस हो जाता है, ये शरीर आते और जाते हैं। संसार सपने की तरह आता है फिर खो जाता है। गुरुदेव के साथ हम लोग इस ट्रिप पर गए, है ना? आज वो ट्रिप सपना हो गई, खत्म हो गई ना। पर जो ज्ञान गुरुदेव ने दिया, उसे पकड़कर अगर हम संसार में उस परमानेंट पर अवेयरनेस टिका सकें, तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ वर्थ वाइल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। ये इजनेस मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मुझे कहां पर पकड़ में आ सकती है? अपने ही भीतर वह जो हर एक अनुभव को सत्ता देता है, अगर मैं उसको पकड़ लूं तो फिर मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। तो देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं उन दिनों में गुरुदेव के साथ नहीं थी, मैं एक दूसरे किसी सत्संग में जाती थी। तो हम लोग सवेरे से हमारा वो सत्संग शुरू होता था, और हम लोग 7 बजे से 9:30-10 बजे तक ब्रह्म 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 सुन करके मैं आई। हम लोग सुनते रहते थे। मैं आई, 3 घंटे का सत्संग होता था। गाड़ी में आकर के बैठी। उन दिनों मेरी गाड़ी एकदम खटारा थी, उसके बॉडी में छेद थे, और उसमें से आवाज आती थी, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती रहती थी। तो मैं उस गाड़ी में आकर के बैठी, तो सबसे पहले कानों में क्या पड़ा? वो आवाज, खड़खड़ खड़खड़। तो मैंने कहा कि अरे, ये आवाज भी तो ब्रह्म ही है, ये गाड़ी का पतरा भी तो ब्रह्म ही है, उसके अंदर जो बैठे हैं वो ब्रह्म ही है। और फिर जैसे कि आई टुक अ लीप into the Krishna consciousness, and I began to feel that इस जन्म में, in this form, मुझे कबूल है इस तरह से, इस तरह की गाड़ी में बैठना। उस फॉर्म में मैं ही तो मर्सिडीज में बैठी हूं, मैं ही तो फरारी में बैठी हूं, और मैं ही बेंटली में बैठी हूं, मैं ही बस में चढ़ती हूं,
मैं ही गांव गांव में बैलगाड़ी में जाती हूँ, मैं ही तो सब रूपों में, सब वाहनों में मैं ही मौजूद हूं। तो मैं अपनी छोटी आय से निकल करके एक विशालता को एम्ब्रेस कर लेती हूं, और उसके बाद से आज का दिन है, मुझे कुछ मैटर ही नहीं करता कि मैं किस गाड़ी में बैठी हूं, क्योंकि मेरे लिए ये केवल एक व्हीकल है, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर ये ना हो तो मैं पैदल चल करके जा सकती हूँ। भगवान ने हमको हर तरह से इक्विप कर रखा है। मेरे जहन में ही ये, जहन से बात निकल जाती है। आप सोचिए, इस तरह से अगर हम इस एक्सपेंशन का फायदा उठा लें तो हम सीधे उस कृष्ण कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं। फिर ये ज्ञान जीवन में अप्लाई होने लगता है, और फंक्शनल प्लेन के अप्स एंड डाउन्स हम ट्रांसेंड कर जाते हैं। ना अप मैटर करता है और ना डाउन मैटर करता है। अब हम वापस श्लोक पर आ जाते हैं। क्या है यह तत्व जो हमने अभी कहा? यह इजनेस की अवेयरनेस है। देर आर टू काइंड्स ऑफ अवेयरनेसेस, the awareness or alertness of the sense organs. Then there is that which gives sentience to the sense organs themselves. This sentience is borrowed, but with it comes the awareness of the sentience. जो हमारे अंदर सेंशियंस है, भगवान उसको लाइफ देता है, और इस लाइफ देने के साथ साथ वो हमको उस सेंशियंस की अवेयरनेस भी दे देता है। समझे कि नहीं? सत और चित, सत मतलब हमको लाइफ देता है, लाइफ के साथ वो लाइफ की अवेयरनेस जो देता है, दैट इज द वन which corresponds to the Brahman. You understand? Shashi ji, are you understanding? Is it clear to you? I want some. This Avyay Tattva is the knowingness of the sentience. Now that the meaning is understood, now we are going to talk about the situation which was facing Krishna and Arjun. We'll just leave the abstract for a little while because it has got a little too much. है ना? Now, what was Krishna trying to do? All Krishna's words were directed towards the goal of making Arjun fight. That was the agenda. So, all of Krishna's words are directed towards the goal of making Arjun fight the war. That was the agenda. Because if negative energies that were prevailing at that time had been allowed the kingship of the kingdom, the common man would have lost his faith in the essential goodness of mankind. जिसकी लाठी उसकी भैंस के जैसी अराजकता फैल जाती और न्याय या अधिकार, nobody would have had any rights of their own, उसके लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती। अर्जुन आज तो मैदान छोड़कर भाग जाता, पर बाद में द्रौपदी के खुले केश और उल्हाने से भरी आंखें देखता तो वह ग्लानि, रिग्रेट, रिमोर्स से भर जाता और अपने को ही माफ नहीं कर पाता। कृष्ण तो सर्व के हृदय के भाव जान जाते हैं और उसके बल पर सब फोरकास्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे हाईएस्ट सच समझाया और उसने उसके गलत लॉजिक से उसी को बचाया। Now we will do the 18th shloka. I will read out the 18th shlok.
First the translation and then the poetic rendition. इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। क्या कह रहे हैं वो? अब इसका पोएटिक रेंडिशन। नित्य अविनाशी अप्रमेय के नाश के देह नाशवंत होते हैं। हे भरतवंशी तू इसीलिए उद्यत हो जा युद्ध के लिए। सबके शरीर एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। तू इन्हें मारे न मारे, ये मिटने ही वाले हैं। इसलिए तू इस संताप से दुखी मत हो। इन्होंने गलत राह पकड़ी थी और क्षत्रिय होने के नाते तुझे युद्ध के लिए खड़े होना ही चाहिए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म ज्ञान चोजन फ्यू को दिया जाता है। बाजार में खड़े जितने भी लोग आते जाते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं पकड़ाया जाता, केवल सतोगुणी लोगों के लिए होता है, क्योंकि दूसरे लोग इसका गलत फायदा उठा लेंगे और स्वयं को कर्तव्य से मुक्त करा देंगे। जैसे मैंने किसी से लोन लिया, अगर मैं स्वार्थ में डूबी हुई हूं तो ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद मैं कह दूंगी जिसने लोन दिया वह भी मैं ही हूं, इसलिए मैं क्यों लोन लौटाऊं। यहां अर्जुन उन्हें मारना नहीं चाहता, उसका अंदर का तमस और रजस दोनों ही शांत हो गया है और वह केवल सत्व में खड़ा है। कृष्ण उसे तीनों गुण के ऊपर सत्य के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। याद दिलाते हैं कि तेरे पूर्वज भारत उसको बोला ना, भरतवंशी, तेरे पूर्वज कर्तव्य के मार्ग पर चल करके मुक्ति को प्राप्त हुए थे। भरत राजा भरत को भी मुक्ति मिली थी। यह युद्ध तेरे अल्टीमेट मोक्ष में बाधा नहीं बनेगा। तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। यहां तक हुआ इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एनालिसिस। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भगवत गीता के ज्ञान के बारे में बताना चाहती हूं। यह जो 16 और 17 श्लोक है, इनका भाव कृष्ण ने 4 जगह गीता में बताया है, पर हर बार थोड़ा सा शेड ऑफ डिफरेंस लेकर के। मैं आपको बताती हूं। पहले तो ये दूसरे अध्याय में 16 और 17 श्लोक, हाँ। फिर 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यानी 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि वह ट्रांसेंडेंटल बीइंग केवल प्रेम से रिझाया जा सकता है। भक्ति भाव से उससे कनेक्ट कर सकते हैं। भक्त और भगवान एक ही रूप है। गॉड एंड यू आर द सेम। ये है 8वें अध्याय में। 9th चैप्टर में 4th वर्स में कहते हैं, By me all this is pervaded, हाँ, in my invisible unmanifest form. By me all this is pervaded in me, my invisible unmanifest form. All things are in me, but I am not in them. ये हुआ अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से। वो कहते हैं कि एक तो है अद्वैत, दैट नॉन ड्यूअल ट्रूथ, और एक है माया। दे आर appearing in me. The Maya is me only. It is my manifestation. मैं अगर फॉर्म लूं तो वो माया का ही रूप हो जाता है। फिर 18th चैप्टर के 46th वर्स में कहते हैं, worshipping that one by your actions will connect you with it and you will attain perfection. अब ये मत समझिएगा कि इतनी सब रिसर्च मैंने खुद करी,
मुझे तो बना बनाया माल मिल गया जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। तो डोंट गिव मी क्रेडिट फॉर ऑल दिस बारीक डिटेल्ड छानबीन ऑफ द गीता. इट हैज कम टू मी थ्रू समबडी एल्सेस एफर्ट्स. ठीक है? तो आज हमने यहाँ तक ये 3 श्लोक पूरे कर दिए. अब मैं आपको थोड़ा गणेश चतुर्थी के बारे में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी-अभी हमारे सब घरों में गणेश जी आए हैं और हम लोग उनको अपने ही प्रिय इष्ट के जैसे इन 10 दिन तक पूजते हैं या 2 दिन पूजते हैं, जितने भी दिन हम रखते हैं. पहले बात करेंगे गणेश जी, उनका रूप और स्वरूप. गुरुदेव ने उनका स्वरूप का बखान किया कि वो चिदानंद है, निजानंद है, निर्गुण है और अजम अगम और अजम है, अजन्मय है, अगम है और वो ब्रह्म स्वरूप है. ये हमको गुरुदेव ने बताया गणपति के बारे में कि उनको स्थूल फॉर्म करके देखो, प्यार करो, पर उनकी असलियत भी जानो कि निर्गुण है, निजानंद है, चिदानंद है और उनका स्वरूप क्या है, वो अगम है, अजम है और ब्रह्म स्वरूप है. अब हम लोग उनके रूप की बात करते हैं. जो गणेश हैं वो मूलाधार के इष्ट हैं. वो मूलाधार चक्र पर विराजमान है. देखिए, मूलाधार में देवी एक केव में सोती है और वे गणेश जी देवी को गार्ड करते हैं. देवी शक्ति है. देवी is that Shakti which is like the lightning of the electromagnetic field in which all the beams run. तो साइंस कहती है कि उसके अंदर इतनी तरह की अलग अलग इलेक्ट्रिसिटीज हैं. हम लोग उसको केवल देवी का नाम दे देते हैं और देवी की अलग अलग फैकल्टीज की भी हम बात करते हैं. So that Shakti is like the electromagnetic gravitational force, strong, weak nuclear interaction. Okay? ये जो बॉडी है इसके अंदर हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. उस हर सेल के अंदर एक वोल्टेज है. हाउ मच इज दैट वोल्टेज? -200 millivolts is the voltage in each and every cell of the human body, of which there are trillions of cells. If all these cells were lit up at one time, how much would be the effect of it? Like an electricity bolt. बिजली गिर जाती है, उसके अंदर हमको फील होता है कितनी एनर्जी है. उतनी अगर हमारे सब सेल्स एक साथ लाइट अप हो जाए तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी ये बॉडी केपेबल है. यू अंडरस्टैंड? This much energy we can utilize from our own body when the Shakti is awakened within us. When she is your support, you can talk to her. You can get anything done through her. You want wealth in your house. You want कि जो तुम्हारे घर में झंझट झमेले चल रहे हैं वो पीसफुल हो जाए. देवी तुमको वो भी प्रदान कर सकती है. देवी तुमको नॉलेज का भंडार दे सकती है. सब कुछ देवी केपेबल है. लेकिन देवी किससे जागृत होती है?
सब देवियां गणेश को अपना पुत्र मानते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। अगर गणेश जी तुम्हारे मनवाने से मान जाए तो सब देवियां तुमको सब कुछ प्रदान करने को तैयार हो जाती हैं। इसलिए हमारे कल्चर में बताते हैं कि तुम इनकी मदद लो, अपना जीवन सुखी करो और फिर स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर भी आगे बढ़ो। एक शब्द आता है करुणा। देवी के अंदर बहुत करुणा है, ठीक है। करुणा का मतलब क्या है? क मतलब क्रिएशन, करना, है ना। क से क्रिएशन और रुणा, रुणा मतलब अम्बलिकल कॉर्ड। वो उसने हमको पैदा किया है तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करती है कि हमको लुक आफ्टर करे। वो हमारी मदद करना चाहती है प्रोवाइडेड कि हम उसके प्रति सप्लिकेट करें, सरेंडर करें, उससे दोस्ती करें, उसको अपना बनाएं। इस तरह से देवी की कृपा हमारे जीवन में आ सकती है, ठीक है। गणेश जो है, गणेश was created to guard her. If we please Ganesh, then only we can awaken the Devi within us. Even Shiva, which is pure consciousness, cannot go in without encountering Ganesh. He was created to obstruct, and therefore he can clear all obstructions. क्यों हम लोग चतुर्थी के दिन ही गणेश जी को अपने घर लाते हैं? ये इनका बर्थडे नहीं है। चतुर्थी उस बात की याद दिलाता है कि इन्होंने 4 वेदों को लिखा था जब वेदव्यास उसको बोल रहे थे। तो इसलिए चतुर्थी हम उस बात को याद करते हुए उनको चतुर्थी का दिन दिया। यही महीना क्यों? क्योंकि बारिश के बाद बहुत सी विघ्न और बाधाएं हमारे घरों में आ जाती हैं। बहुत सी बीमारियां, मलेरिया, क्या क्या चीजें, बहुत तरह के जीव जंतु इसको अटैक कर सकते हैं। इसलिए ये सीजन हमने उपयुक्त समझा गणेश की पूजा करने के लिए। So now I can, I have brought out some points which are different from what we have already heard. So here is another point. Why the elephant head? Elephant is one of Pashupati's favorite animals. Now this, she has just recited that incident where she's talked about that incident where his head was severed. Now what had happened was that Shiva wanted to enter as pure consciousness, but he had to encounter Ganesha. Ganesha was such a brilliant warrior that the 3 Brahma, Vishnu and Mahesh individually could not conquer him. So what happened? They were fighting and he repulsed their attacks. And then while Shiva was fighting from the front, Vishnu from the back cut away the head. Now when Vishnu had cut the head, Shiva was full of remorse. अरे क्या हो गया? ये मेरी वजह से ये एक छोटे बच्चे का सिर कट गया। और इसके अलावा पार्वती तो बहुत ज्यादा नाराज हो ही गई थी, तो उनको बहुत ही रिमोर्स हुआ, रिग्रेट हुआ। और फिर उन्होंने, क्योंकि ही पशुपतिनाथ ना, तो उन्होंने सारे जानवरों को एक मैसेज भिजवाया कि भैया जो भी अपना सिर इस बच्चे को देना चाहे तो वो सामने आए। तो उसमें क्या हुआ कि हाथी ने कहा कि हाँ, बिना झिझक के हाथी बोला मैं अपना सिर देना चाहता हूं।
तब शिव जी ने कहा कि जाओ, जो भी जानवर तुमको पहले आते हुए मिलेगा, क्योंकि उनको मालूम था कि द एलिफेंट इज ऑलरेडी स्टार्टेड आउट टुवर्ड्स वेयर दे आर एंड दे विल एनकाउंटर हिम ओनली फर्स्ट। तो इसलिए उस एलिफेंट का सिर उनके सिर में रखा गया। अब एलिफेंट के सिर में क्या बात है, सबसे बड़े उसके कान होते हैं, इतने बड़े कि वो बाकी सब एरियाज को ओवरशैडो कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो गणपति है उनकी कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो कुछ भी वो सुनते या देखते हैं वो सब आत्मसात करते हैं। उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो बहुत कुछ अपने अंदर ले सकते हैं। और हाथी की आंखें छोटी होती हैं, फोकस्ड होती हैं। हाथी इतना ऊंचा है, हाथी की आंखें साइड पर हैं, लेकिन जो सामने होता है उसकी तरफ वो फोकस से देखता है। ये कैपेसिटी भी गणेश की है कि जो भी उनके सामने होता है उसको वो पूरा ध्यान से देखते और सुनते हैं। और वो ये हमको हमारे लिए एक सीख देते हैं कि जो कुछ भी तुम एड्रेस कर रहे हो एट द प्रेजेंट मोमेंट, गिव इट योर फुल अटेंशन। नाउ आई विल टेल यू व्हाई देयर इज, अच्छा हाँ, उनका मुंह पीछे को है, छोटा सा है, दिखाई भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि वो बोलो कम, बोल बोल करके न अपनी शक्ति का ह्रास करो, न दूसरे के कानों को पीड़ित करो, बोलो कम। ठीक है। अब उनके पेट पे सांप क्यों बंधा हुआ है ये भी शायद हम लोग सब नहीं जानते होंगे। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि एक दिन उन्होंने बहुत खिलाया। जैसे चतुर्थी के दिन हम लोग गणपति को बहुत तरह के भोग लगाते हैं, तो उनको बहुत खिलाया। तो इतना खिलाया कि वो जो उनका वाहन है चूहा, वो उनको वो अपना बैलेंस उस छोटे से चूहे पर नहीं रख पाए, तो वो लुढ़क गए। तो उनका पेट का सब बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा आई मस्ट फिक्स दिस। तो उन्होंने एक सांप लिया और उसको उन्होंने अपने वेस्ट के ऊपर बांध लिया। अब सांप का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताती हूँ कि स्नेक represents a lot of wisdom. When Ganesha speaks, it is full of wisdom. Sheshnag has been giving wisdom to humankind from times immemorial. पातंजलि के रूप में शेषनाग ही आए थे, है ना। तो शेषनाग वो एंटिटी है जो हमेशा हर अवतार के साथ में प्रकट होते हैं, इसलिए वो गणेश के भी नाभि के ऊपर बांधे हुए हैं। नाभि का मतलब द गट। तो अगर हमको अपने जीवन में गणेश को सुनना है तो हम अपने गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। तो मतलब हम गणेश की आवाज अपने जीवन में सुन रहे हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये जो गट फीलिंग है इसका एक इंग्लिश में नाम है, लिख लीजिए, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। The gut feel which we have all experienced comes in handy at difficult times in our lives. गणेश जी के 4 हाथ हैं। वो 4 हाथ ऐसे हैं, जैसे ऐसे से करके है ना, तो वो जैसे कि स्वस्तिक का रूप है गणेश। पहला हाथ जो दाहिना हाथ है उनका अभय मुद्रा पर है, और उसमें कई बार हथेली के ऊपर स्वस्तिक बना हुआ भी हमको मिलता है। ये 4 हाथ उनको कब और कैसे मिले? पहले वो केवल 2 हाथ के बालक थे, लेकिन उन्होंने इतनी कुशलता से युद्ध किया था शिव जी के साथ कि जब उनको एक और सिर मिला, तभी विष्णु भगवान के
आशीर्वाद से उनके 4 हाथ हो गए। तो ऊपर वाले दाहिने हाथ में वो एक अंकुश को पकड़ रखे हैं। तो अंकुश क्या होता है? हाँ, पहले तो ये जो अभय मुद्रा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो जब आशीर्वाद देते हैं तो हमको अभय मुद्रा, उनकी अभय मुद्रा है और हमसे कहते हैं कि तुमको डरने का जरा भी कारण नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ। तो ये हुआ। नीचे वाले हाथ में, उनके हाथ में लड्डू रहता है। लड्डू का ये मतलब है कि इस सीजन में ये 2 महीने आप कुछ थोड़ा सा मीठा अपने खाने के साथ खाइए, वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। और कुछ नहीं तो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं और उसमें ये ख्याल रखें कि गन्ने का जूस पीने के बाद आप आधे घंटे तक पानी न पिए, ठीक है? इसके अलावा मीठा, जो कुछ भी जीवन में मिठास है, जैसे वेल्थ है, जैसे कि गुड रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि अच्छे फ्रेंड्स हैं, गुड फैमिली है, तो ये सब जीवन की जो मिठास है, ये हमारे जीवन में भरपूर मात्रा में आ सकती है जब हम गणेश की आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमें जीवन में खुशियां प्रदान करने के लिए ही इस रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अंकुश है, ये पार्वती ने उन्हें दिया था। पार्वती खुद भी इसका इस्तेमाल करती है। Amna ji, what's the meaning of Ankush? Ankush is a kind of weapon, and I am going to explain what the weapon is. So Ankush is, originally it was half a gada and on the other side was a blade. So you could smash somebody's head as well as slice away something, whatever you needed to slice out of your life. You understand? So it had the dual weapon. Later on, it just became like a hook. That Ankush took the form of a hook. Why it took the form of a hook? Because with the hook, we can hook our mind, जो इधर उधर भागता रहता है। जैसे कि एक हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, तो उसको महावत कैसे कंट्रोल करता है? वो अगर बाएं कान को ऐसे करके पुल करेगा तो हाथी को बाएं मुड़ना है, अगर दाहिने को पुल करेगा तो हाथी को दाहिने मुड़ना है। तो इसलिए वो एक हुक का फॉर्म ले लिया उसने, बट ओरिजिनली इट वाज अ गदा as well as a blade on the other side. You understand? अभी उनके दूसरे हाथ में रोप है, पाश है। पाश मतलब एक बांधने का एक साधन। तो बांधना किससे है? हमको अपने आप को किससे बांधना है? अपनी रूट से बांधना है। आज जैसे हम लोग मन चले होकर वेस्टर्न फिलॉसफी के पीछे भागे जा रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं, वैसा करने से हमको अपने जीवन में वो स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती। हमको हर मौके का फायदा उठाना चाहिए जो हमको अपने रूट्स तक ले जा रहा है। अगर गणपति खुश हो जाए तो चारों वेदों का ज्ञान हमारे लिए खुल सकता है। He is the gateway to सरस्वती। सब देवियां उनके ऊपर कृपालु हैं और गणपति के थ्रू हमारे लिए सब देवियां मतलब प्रेजेंट है हमारे लिए, हमारे काम वो पूरा करके देंगी। अब देखिए उनको कैसे अपने जीवन में लाए। गणपति का फॉर्म ऐसा है, हर एक चीज में हमको गणपति दिख सकता है। अगर हम बादलों में देखें तो गणपति बहुत आसानी से हमको नजर आ जाते हैं। हम सुपारी को गणपति का रूप दे देते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम उस सुपारी में गणेश को देख सकते हैं। पत्थर
में गणेश को देख सकते हैं, पेड़ों में गणेश का फॉर्म देख सकते हैं, Especially banyan tree. स्पेशली द banyan. Banyan tree. ओके, तो हर एक चीज में, हर पेड़ के झुरमुट में, हर पत्तियों के झुंड में हमको कहीं ना कहीं से वो गणपति का फिगर नजर आ जाएगा। अगर हम ये 10 दिन उनको समर्पित करें, जैसा कि मैंने ये सत्संग शुरू करने के पहले बात चल रही थी हम लोगों की, तो मैंने कहा था कि ये जो एक मंत्र है, गम 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 गम, ये गणेश का मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण से हम गणेश को अपने दिल में धारण कर सकते हैं, उनको अपना बड़ा भाई बना करके उनको हमेशा अपने साथ महसूस कर सकते हैं। और जब हम गणपति का विसर्जन करते हैं, तब हम एक्चुअली अपने घर की सारी नेगेटिविटी को डिसॉल्व होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि गणेश हमारे घर में इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटे से ध्यान की प्रक्रिया से ले जाना चाहती हूं, क्योंकि 16वां श्लोक करा और उसको इंटरनलाइज नहीं करा तो ये सेशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्लीज बेयर विद मी एंड बी विद अस। आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए। क्या फील हो रहा है? आप यहां हैं, आपको अपनी उपस्थिति अनुभव हो रही है। यह अपनी उपस्थिति की फीलिंग आपके चलते हुए सांसों से बहुत अलग, असंग है। सांस अलग चल रही है, ये फीलिंग कोई अलग ही डायमेंशन की फीलिंग है। जो इंद्रियां अब तक आपको अपनी लगती थी, वे भी आपसे अलग हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार वे एक्टिवेट हो रही हैं। आपको उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है। इस समय आप बस यहां हैं। आपके अंदर किसी की इंतजारी नहीं है, कोई नेक्स्ट की अपेक्षा नहीं है। इस समय आपको कुछ बनाने की ख्वाहिश नहीं है, कुछ खरीदने, लाने, घर को भरने की ख्वाहिश नहीं है। ना कुछ आपको त्यागना है, बिगाड़ना है, तोड़ना है या फिर से बनाना है। इस सब की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। देखिए, इस तरह ठहर जाने में कितनी शांति, कितनी कंप्लीटनेस है। आप में या इस प्रेजेंस में कितनी पूर्णता है। यह जो प्रेजेंस है, यह एक इनफाइनाइट स्पेस की तरह आपके अनुभव में आ रही है। इसका कोई ओर है न छोर है। यह इनफाइनाइट प्रेजेंस आप पर पूरी तरह छा गई है। मन बिल्कुल स्थिर है। यदि कोई
इक्के दुक्के थॉट्स बादलों के जैसे तैरते हुए आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उनका आपसे कोई वास्ता नहीं है। वे जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। आप सबसे अलग अपनी पूर्णता का आनंद ले रहे हैं। इस समय अगर बाहर शांत वातावरण है, तो हो सकता है कि इस समय आपको एक गूंज सुनाई पड़ रही होगी। वह ओम का अनहद नाद है। Notice how you are totally engulfed in the infinity and the echo of Om. Apart from this, there is just pleasantness, joy, silence, and serenity. These are the perfumes of this day. You are now connected to your expanded consciousness. It was always available to you, but you had not known it. This is your source, the ultimate truth from where you have emerged. You are nothing but this tattva. यह सत चित आनंद की झलक है। कुछ देर इसमें बने रहिए। फिर जब भी आपका मन हो, आप अपने आंखों को खोल लीजिए और हम सबको अपने अंदर के विचार शेयर करके इस सत्संग को धन्य बनाइए।